Good morning, students. Today we are going to start next chapter number 12, biotechnology and its application. Okay, biotechnology deals with the use of microbe, okay, or enzymes from organism to produce desired product in the service of human being. We have discussed about biotechnology. Okay, biotechnology is a branch of science that deals with the use of living microbes or enzymes from organisms to produce a desired product in the service of human being. Okay, we have discussed in chapter 11 for obtaining the desired product. First, we make recombinant DNA. Then this recombinant DNA inserted into the host cell, and this manipulate the host cell DNA. In this way, the DNA of host cell is changed. Okay, in this way we get desired product. Okay, by the use of biotechnology. So there are three critical research areas of biotechnology. That are number one, providing the best catalyst in form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. That means biotechnology provides the best catalyst. Catalyst is any substance that can be added to the reaction to increase the rate of reaction. ओके, किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस उसको क्या कर देता है, उसकी रिएक्शन को के रेट को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, तो इसके लिए यूजुअली वी यूज माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम एज कैटलिस्ट. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट टू improve the quality of organism. Okay, to improve the quality of organism in biotechnology provide the best catalyst, okay, in the form of microbe or pure enzyme. Second, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. Okay, biotechnology create an optimal condition or the necessary conditions that are needed for the catalyst to act. Okay, मतलब catalyst को act करने के लिए, work करने के लिए जो भी necessary conditions चाहिए, biotechnology वो सब conditions को क्या करवाती है, provide करवाती है, उसको create किया जाता है. ओके, 11 चैप्टर में हमने देखा था ना कि किस तरह से हम माइक्रोब्स को का यूज करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं ना, एक जीन्स एक ऑर्गेनिज्म से हम उसके डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको क्या है वेक्टर के साथ ऐड किया जाता है, और इस तरह फिर उसको बाद में हम वो सेल के अंदर इंसर्ट कराते हैं, और इस तरह से हम क्या है डिजायर्ड प्रोडक्ट को मतलब ऑब्टेन करते हैं. तो उसके लिए जो भी मतलब कंडीशंस है उस माइक्रोब के वर्क करने के लिए जो हमने वेक्टर लिया है उसको एक्ट करने के लिए कुछ ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, सुटेबल टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो सब क्या है बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है. ओके, नेक्स्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डिजायर्ड हमारी प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है बाय द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ओके, बाय द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्यूरिफाइड इन बायोटेक्नोलॉजी. इन दिस वे वी गेट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके, सो लेट अस लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health. ओके, मतलब किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ. ओके, yes, biotechnology application in agriculture. Okay, first we discuss बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, मेनली एग्रीकल्चर में जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे
production. There are three options. There are three options for increasing the food production. Number one, agrochemical based agriculture. Yeah, that means in agriculture we use some chemicals like pesticide, insecticides, weedicides. Okay, so by the use of chemicals we can increase the food production. Second, organic agriculture without the use of chemical. Okay, by the use of cow dung, biofertilizers. Okay, organic agriculture में हम क्या करेंगे? Cow dung use करेंगे. Okay, we use cow dung, biofertilizers like rhizobium, azotobacter. Okay, by the some useful microbes. Okay, कुछ यूजफुल माइक्रोब्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. लास्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. दैट मीन्स इन एग्रीकल्चर we use those crops in which genes are changed to improve the quality of crop. Okay, in agriculture we use those crops in which genes are changed to improve the quality of crop. Okay, so in this way we can increase the food production by these three methods. But agriculture have some disadvantages also. Okay, if we use more chemicals, it also decreases the soil fertility. It decreases the soil fertility. So we cannot use chemicals in large quantity. Therefore, we cannot prefer this. Okay, organic agriculture is advantage, but we cannot produce ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, तो इसका भी हम यूज नहीं कर सकते. तो हमारे पास लास्ट में क्या रह गया? सो यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप इन एग्रीकल्चर इज पॉसिबल सोल्यूशन. ओके, मतलब इसकी जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप का यूज हम करेंगे मेनली फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. ओके, अब ये क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, यानी इनको ऐसी क्रॉप्स जिनके अंदर क्या उनकी जीन्स को चेंज करके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया. तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट है जीएमओ. फर्स्ट इज जीएमओ. यस, जीएमओ. जीएमओ इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को हमने चेंज कर दिया, उसके मॉडिफाई कर दिया. Okay, so plants or bacteria, fungi and animals whose gene have been changed by manipulation, has been altered by manipulation are called GMO. वैसे कोई भी प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, फंगी, जिसके अंदर हमने उसके जीन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया है बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. Okay, this type of organism are known as GMO, genetically modified organism. ठीक है, अगर हमने प्लांट के जीन को मॉडिफाई किया है तो हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट्स. अगर हमने एनिमल्स के जीन्स को चेंज किया है, वी कैन से दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. सो जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज. Now we discuss the advantage of GM plants. Okay. First is make crops more tolerant to abiotic stresses. Okay, यानी उनके जीन्स को चेंज करके हम क्रॉप्स को क्या ऐसे क्रॉप्स बनाते हैं जो क्या है अबायोटिक स्ट्रेसेस, लाइक एनवायरमेंट में कोई चेंज हुए, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया एनवायरमेंट. ओके, या ड्रॉट, एकदम से उस एरिया में क्या आ गया है? ड्रॉट. टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा हीट हो गई है. तो ये जो अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, तो हम ऐसे क्रॉप्स को मेड करते हैं कि वो इन जो अबायोटिक स्ट्रेसेस है उनको टॉलरेट कर सके. वी मेक द क्रॉप्स दैट कैन tolerate the abiotic stresses.
pulses. Okay. Second, reduced reliance on chemical pesticides. Means dependency on chemical pesticides are reduced, and instead of chemical pesticides, pest resistant crops are made. Okay, उनके जीन्स को चेंज करके पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई जाती हैं, ताकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं पेस्ट को अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए, तो इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ओके, इट हेल्प इन reduce the post harvest losses. यानी क्रॉप की कटिंग के बाद, आफ्टर द कटिंग ऑफ क्रॉप जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं. फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट. मीन्स efficiency of crop is increased to use minerals. Increased efficiency of mineral uses by plant means increased efficiency of crop to use minerals. Okay, यानी उनके जीन्स को चेंज करके इस तरह की क्रॉप्स बनाई जाती हैं कि वो क्या हो, उनकी एफिशिएंसी, मिनरल्स को यूज करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए. That means with the use of low mineral, make more food. Okay? Yes, this prevents early exhaustion of soil fertility. देखो, अगर ये किसी सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, अगर उन मिनरल्स का यूज हो जाएगा तो वो सॉइल कैसे बन जाएगी, इनफर्टाइल. तो अगर इन मिनरल का यूज कम होगा तो उसके अंदर मिनरल्स का जो यूज है वो जल्दी, मतलब मिनरल्स जो है वो खत्म नहीं होंगे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, बनी रहेगी. ओके, तो इस तरह से इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप टू यूज मिनरल. दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्लियर? If all the minerals are used by the plant, then soil become infertile. So it increase the efficiency of crop to use mineral. Next, enhanced nutritional value of food. यानी फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, increase the nutritional value of food. It increased the nutritional value of food. यानी जीन्स को चेंज करके हम उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्रॉप की, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन राइस. गोल्डन राइस इज द राइस दैट आर रिच इन विटामिन ए. विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, यानी इनके जो जीन्स है उसको चेंज करके उसके अंदर विटामिन ए का जो जीन है, मतलब उसकी अमाउंट को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है. ऐसे राइस के अंदर विटामिन ए की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है. सो गोल्डन राइस भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं. इसलिए ये एग्जांपल है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है गोल्डन राइस को. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस genetically modified organism and the advantage of GM plant. Okay, so watch video carefully. Read chapter from book also, beta. Thank you, students.